Today we will start with some of the most important artists' reference to context on Homecoming ICSE Class 9 Ravindranath Tagore. Let us start with explanations जहाँ जहाँ होंगे आप लोग उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या कॉपी में उठा लीजिएगा. The first RTC is from He appeared like a young philosopher meditating on the futility of the games. इस लाइन को बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये. इसको कैसे एनालाइज किया जाए. Makhan's appearance was like a philosopher, as if he was deeply thinking about the uselessness of any game, as to no use in life. कोई यूज ही नहीं है लाइफ में गेम का, ऐसे सोच रहा है. He was compared with a philosopher. Makhan in fact wanted to disturb his elder brother and his gang in between their entertainment. He did not want them to enjoy. Actually वो बदमाश है. Might be the reason was he was not taken into the game, so Makhan decided to disturb them. Makhan was equally a mischievous boy like Fatigue. ये समझ में आ गया ना. उसका अपीयरेंस जो है वो लग रहा था फिलोसोफर जैसा, लेकिन वो फिलोसोफर नहीं है. ये थोड़ा आयरॉनिकली एंड ह्यूमरसली बताया गया. नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट आर्टिस्ट. ये आर्टिस्ट होगा Makhan heard the order and made it a point of honor to stick on. उस वहाँ से that there was a peril in it. यहाँ तक. The narrator of the story compared Makhan as the fame seeker or heroic great in trying to take huge risk. जो रिस्क लेते हैं ना, जो मैंने बड़े कुछ काम करना चाहते हैं तो उसको रिस्क लेना पड़ता है और रिस्क लेते भी हैं. Risk mentally and physically for a possible bad result, accepting possible pain to. खराब कुछ मतलब रिजल्ट भी हो सकता है, ऐसा सोच के ही वो लोग जानते हुए वो बड़े नहीं है बुर्बक की तरह मतलब रिस्क ले लिया. They are not afraid of pain. वो लोग पेन के मैंने पेन होगा ये सोच के मतलब वो परेशान नहीं होते हैं. They are repeaters of the tries. बार बार वो एक ही काम करते हैं, फेल हो जाते हैं फिर भी वो काम करते हैं. इतना फैसिनेटेड होते हैं वो काम के लिए, इसीलिए ना मतलब ग्रेट होते हैं. द नैरेटर वांटेड टू शो द आयरनी दैट इन फैक्ट माखन वाज नॉट द मैच्योर्ड एंड एबल. वो जैसा शो कर रहे हैं ऐसा वो है ही नहीं. माखन वाज जस्ट आउट ऑफ फन रियली एंड ओवरलुक द ऑर्डर टू रोल आउट एंड बट डिड नॉट रियलाइज द रिजल्ट. यही बात है, वो ऐसे थे ही नहीं, ग्रेट थे ही नहीं. Makhan thought it best to stick to his previous statement. He said, "Yes, mother, fatigue did hit me." ये लाइन को डिस्क्राइब करेंगे थोड़ा. क्यों बोला, क्यों स्टिक रहे ये. Makhan fell down and was in a heart because of the fatigue's order to roll the log, so it was equal to beating to him, and he continued his complaint as beating. वो उसके पास क्या है मतलब वो ऑर्डर दिया था, मतलब फटीक ऑर्डर दिया था कि मतलब रोल आउट कर दो वो लॉग को, इसीलिए ना वो गिर गए तो इसीलिए उसको मतलब पेन हुआ, तो ये मारने का ही इक्वल हुआ उसके पास. माखन डिड नॉट टेल दैट ही स्टार्टेड डिस्टर्बिंग फटीक एंड his gang in their game because he wanted फटीक टू बी हॉट बाय देयर मदर. वो बोलना ही नहीं चाहते थे कि मैं ही झमेला चालू किया था, तो स्टिक किए. Next RTC, it was an immense relief to the mother to get rid of fatigue. वहाँ से चालू करके लास्ट लाइन तक. She was somewhat distressed to see fatigue's extreme eagerness to get away. यहाँ तक पूरा के पूरा explanation next explanation में है, देख लीजिए. Their mother was worried about fatigue's future. She thought that he would be wild and uneducated rebel forever, and there was a risk of dangerous injury for Makhan by him someday. क्योंकि कभी भी वो मार सकता था, ऐसे ही करता था हर रोज मतलब झमेला. The mother thought that if Fatigue went to Calcutta with his uncle, the love between the two brothers should be saved too, because every day there was a conflict. इसके साथ एक और मतलब पैरा करके दे दिए, वो भी काम का होगा. At the same time, Fatigue's mother was in a heart from inside, seeing Fatigue did not have any emotion
for the separation from his mother. That showed his mother loved Fatik too. Fatik did not realize the importance and pure love of his mother at that time. Rather, he was happy going away from his tyrant mother. बार बार वो tyrant mother बोलता था, who beat him daily. Next RTC is he was so pins and needles all the day long with excitement. वहाँ से he bequeathed to Makhan. ये Makhan was unbounded यहाँ तक. Let us come to the explanation. Fatik gave his all playthings and his wealth to Makhan. जितने उसके पास मतलब खेलने का चीज थे, सामान थे, वो तो उसके पास ट्रेजर जैसा है ना, वेल्थ जैसा है, संपत्ति जैसा है. टू माखन फॉर होल लाइफ. ये परपिचुअलिटी वहाँ पर एक तो बात है, मतलब बिक्विद मतलब देना, किसी को मतलब सौंप देना और कोई संपत्ति, एंड परपिचुअलिटी मतलब पूरा लाइफ के लिए. बिकॉज ही वॉज वेरी, मैंने ओरिजिनल में वही है, उसका एक्सप्लेनेशन बता दिए इसमें. बिकॉज ही वॉज वेरी हैप्पी गोइंग टू कैलकाटा. बहुत खुश थे वो, इसीलिए मतलब सब संपत्ति दे के चला गया, मतलब मोक्ष प्राप्ति हो गया, मेरा डिजायर जो था वो मुझे मिल गया काइंड का. एज इट वॉज हिज डिजायर्ड इवेंट गोइंग टू बी हैपेंड, that made him more generous. It proved Fatik did not have real enmity, मतलब शत्रुता कुछ नहीं था उसके साथ, मतलब शत्रु जैसा मतलब व्यवहार नहीं था with his brother, else he could hide those things, नहीं तो छुपा सकता था. A conflict is created by the narrator just after this. When Fatik just arrived to his uncle's house and saw the oncoming face of his aunt, his happiness was just evaporated. He imagined a completely different thing, fable-like situation in Calcutta, but faced something different, just opposite to it. When Fatik reached Calcutta, ये जो RTC है, यहाँ से Fatik made the acquaintance of his aunt for the first time. यहाँ से चालू करके ये पैरा का लास्ट जो है, before committing such an indiscretion, यहाँ तक करेंगे. Let us come to that. Fatik's aunt was already disturbed with her 3 sons, education and upbringing. उन लोगों को लिखाना पढ़ाना बड़ा करने के लिए मतलब पैसा लगता है, तो उसमें ही वो मैंने फंसे हुए थे. उनका जो आंटी थी, she had to manage all expenses by her husband's moderate earning in those days. She did not want any further expenses on Fatik. If Bisambar asked her before, she would not allow Fatik in her family. To her, Bishambar's decision was wrong judgment. जो indiscretion है ना, वो जो लास्ट मैंने वर्ड था पैरा का, वो wrong judgment बता रहा है. Next RTC, in this world of human affairs, there is no worse nuisance than a boy at the age of 14. यहाँ से एकदम लास्ट तक, he appears ashamed of his very existence. ये पूरा के पूरा मतलब हम लोग एक्सप्लेन करेंगे. ये पूरा ही बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी आ सकता है आर्टिस्ट से. Let us come to the explanation part. The age of 14 to a boy is very unpleasant because neither he is an adorable and sweet baby boy nor he is a grown-up man. He realizes he is changed to a different being. एक नया कुछ मतलब उसके अंदर में हो रहा है, नया कुछ बन गया है, वो ये समझ में आ रहा है उसको. 14 साल का उम्र बहुत इंपॉर्टेंट होता है. In this age of a boy's voice breaks, his face shows jaws line, जो मतलब jaw line होता है ना, reducing extra fat on face. ये सब होता है एक लड़का का अंदर में, मतलब लड़का का मतलब मुंह पे, शरीर पे. ये लड़कियों के लिए है नहीं. फर्स्ट ऑफ ऑल ये लड़कियों के लिए है नहीं, कोई भी लड़की के लिए है नहीं. If he speaks like children, he is mocked for his childishness. If he speaks like grown up, he is scolded for being overstepped into grown ups world. एक बड़ों का दुनिया में प्रवेश कर गया है, ये दिखाता है तो मतलब स्कोल्डिंग होता है. छोटा बच्चा जैसा मतलब बर्ताव करता है तो उसको मतलब हंसी मजाक में लिया जाता है. The boy of 14 feels bitterness in his life. एकदम खराब मतलब बिटरनेस फील करता है वो 14-13 साल का उम्र में एक लड़का. He is confused what to do. Everything comes to him as unpleasant. Nobody shows kindness or speaks kind words to him as if it is an indulgence. एक
Indulgence मतलब क्या? Giving little bit of room to do according to his own kind of mindset. ये indulgence बोला जाता है. That will spoil his life. ये समझाया जाता है कि मतलब उसको ज़्यादा रूम दिया जाए, अपना हिसाब से बोलने दिया जाए, करने दिया जाए, तो वो स्पॉइल कर देगा अपना लाइफ को. ही बिकम्स सेल्फ कॉन्शियस दैट ही इज नॉट व्हाट ही वॉज बिफोर. जो पहले था वो अभी है नहीं. ये समझ में आ रहा है उसको क्लियरली. एक नया कुछ बीइंग बन गया है, वो बनने जा रहा है या बना ही है उस टाइम पे. ये समझ में आ रहा है. एक सेल्फ कॉन्शियसनेस आ जाता है उस टाइम पे. बार बार बोल रहा हूँ, ये कोई लड़कियों के लिए है नहीं. 13-14 का लड़कियों के लिए नहीं. ये ओनली फॉर द बॉयज एप्लीकेबल. माइंडेड. Next RTC is, yet it is this very age when his heart of hearts, a young lad, most craves for recognition and love. यहाँ से लेके एकदम लास्ट तक, bad for the boy यहाँ तक. Let us come to the explanation. The boy of 14 years of age longs for love, kindness and consideration. Attention जो होता है ना, consideration. Strikingly, nobody shows this to him. He is so extremely lovesick that if anyone shows this in human soft qualities, कोई भी मतलब शो करता है ऐसा, he will be a slave, just a slave for him or her. And whatever he or she says, the boy will do. In the story, Fatiq longed those two, but did not get them in Calcutta. Calcutta में वो उतना love, care and कुछ भी मतलब मिला नहीं था उसको. फॉर द बॉय, ये जो मतलब आरटीसी हो रहा है, ये फॉर द बॉय ऑफ 14, हिज ओन होम इज द ओनली पैराडाइज टू लिव इन. अ स्ट्रेंज हाउस विद स्ट्रेंज पीपल, अ लिटिल शॉर्ट ऑफ टॉर्चर. यहाँ से लेके पूरा के पूरा मतलब जितना दिया है वो डिस्क्राइब करेंगे. लेट अस कम टू द एक्सप्लेनेशन. द बॉय ऑफ 14 लॉन्ग्स फॉर लव and consideration, but it does not get him. If it does not get them, but if he does not get them, that house becomes a torture place. जैसे कलकत्ता में हुआ था फटीक के लिए. The boy wants elder women's in consideration and soft words. Doesn't want insult. कैसे भी वो insult पसंद नहीं करता है इस उम्र में. Soft words थोड़ा मतलब प्यार चाहता है. But Fatiq received no scolding for everything he did. Fatiq realized that his own village home, his tyrant beating mother, जो मारती थी जो मदर, वही अच्छी थी. मदर अभी उसको ख्याल आ रहा है. मदर वेयर ही इज रियल पैराडाइज, वही उसका स्वर्ग था. एंड बेस्ट नो प्लेस टू डवेल विद. वहीं पर मतलब वही गांव वही ठीक था. तो कलकत्ते में आना ठीक नहीं था. जो वो सोच रहा था कि मतलब एडवेंचर होगा, बहुत बड़ा कुछ मतलब मिलेगा उसको, कुछ नहीं मिलने वाला, उल्टा पड़ गया. द विलेज होम एंड मदर वेयर नॉट इंसल्टिंग, एटलीस्ट इंसल्ट तो नहीं करती थी ना, मारती थी ठीक है, प्यार भी करती थी. नेक्स्ट ये जो मतलब आरटीसी है, इसमें फर्स्ट जो लाइन्स है उसको डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं. जस्ट नो ट्राई टू रीड इट. क्या क्या करता था फटीक उसका गांव में, ये सब लिखा हुआ है. यू हैव टू जस्ट नो मेमोराइज देम. क्या क्या लिखा हुआ है. हम लोग जो कर रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग इज, यहाँ से अ काइंड ऑफ फिजिकल लव लाइक दैट ऑफ एन एनिमल्स, a longing to be in the presence of one, यहाँ से लेके एकदम लास्ट लाइन तक, he mind no continually, preyed upon his mind continually, यहाँ तक करेंगे. Let us come to the explanation. Fatiq was remembering his village and particularly his mother, whom he thought tyrant and not torturing before. He realized the real faces of torturing in Calcutta. जो torturing actually किया होता है real life में, वो कैलकटा में उसको पता चल गया. He felt no survival trouble and wanted his mother at that time, at least as last resort or only resort, just like an animal offspring who only believes the mother, because in the nature only mother upbrings and feeds her child without any self. Fatiq felt only his mother could support his survival. ये नेचुरली एक मतलब लिविंग जो एनिमल्स हैं उनके अंदर में ये नेचुरली होता है, जेनेटिकली फ्रॉम यू कैन से सर्वाइवल, ये आ जाता है जेनेटिकली कि मदर जो है वही
लास्ट रिसोर्ट है फॉर सर्वाइवल। एक बच्चा जो है ना माँ के पास ही बड़ी होती है, ये होता है ना, कोई भी मतलब एनिमल के लिए एप्लीकेशन है, तो यही उसके लिए भी एप्लीकेशन हो गया वहाँ पर जाके। द नेक्स्ट RTC इज फ्रॉम एंड लाइक एन ओवरलेडन एश patiently in suffered the blows that came down on his back। ये जो जगह है heart would ache for with longing, यहाँ तक। फटीग इज कंपेयर्ड विथ एन ओवरलोडेड ऐश, मतलब जो गाधा होता है उसके ऊपर में जितना वेट थोपा जाता है तो वो लेके मतलब वो अनविलिंगली खड़ा रहता है जब तक उसको मार ना पड़े काम करने के लिए। हु वेट्स फॉर द किक ऑन इट्स बैक फॉर डूइंग जॉब अनविलिंगली। ही गोज टू स्कूल रेगुलरली बट ही इज इन हॉट फाइंड्स इन प्लेइंग गेम्स। वो गेम खेलने का मतलब मन करता था उसको, कोई मतलब स्कीड्यूल्ड नो स्कूल लाइफ में उसको पसंद नहीं था। फटीग finds other boys playing through the window of the school। स्कूल का जो विंडो था वहाँ से मतलब देखता था दूसरा किसी का छत्ता पर मतलब कोई खेल रहा है, नीचे में कोई खेल रहा है, ये सब देखता था। City schooling life is a jail to him। He is a misfit in the school system and scheduled life। The next RTC is one day Fatigue lost his lesson book। वहाँ से पूरा के पूरा 5 times a month by you 5 times a month जितने हैं वो explanation। Let us come to the explanation। One day Fatigue lost his lesson book resulting he was not able to do homework and lesson। Teacher scolded and beat him too। वो तो पहले ही मतलब किताबें होते थे तब भी वो पढ़ाई नहीं कर पाता था, तो मतलब खो गया है, कैसे करेगा, उतना तो दिमाग में रख ही नहीं पाता है। For his activities, his cousins denied to accept in a relationship with him। They even insulted more than other boys। Rather, it was expected to have a help from them। ये cousins जो थे, उनका जो 3 भाई थे मैटरनल अंकल का, तो वो उनको ओन करना मतलब कि वो बोलते थे कि ये हमारा कोई है ही नहीं। मतलब कोई ख़राब कुछ हो जाता है ना फैमिली में तो ऐसे ही होता है, बहुत बुरी तरह से मतलब डिजोन्ड होते हैं, डिजोन्ड बोला जाता है इसको, मतलब कोई मानता नहीं है कि वो हमारा कोई है। दुनिया में ऐसे ही दुनियादारी होता है नॉर्मली, मतलब 90% 80-90% पीपल ऐसे ही करते हैं, ठीक है। तो जब उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत था बाकियों का मतलब हेल्प, वो भाइयों का, तो मिला ही नहीं, ज़्यादा हो गया वो। देन द फटीग टोल्ड इट टू हिज ऑन्ट, शी बिकेम फ्यूरियस एंड एज इफ फटीग यूज्ड टू लूज बुक्स रेगुलरली। वो रेगुलरली जैसे किताब खो देते थे, लेकिन ऐसा है नहीं, किताब में जो है तो 1 time होता। शी टोल्ड 5 times in a month बट इन फैक्ट फटीग लॉस्ट द बुक ओनली 1 time। एक ही बार वो खोया था, लेकिन वो 5 बार एग्जैजरेटेड। His every activities or actions was exaggerated like that। ठीक है, तो ऐसे ही मतलब ज़्यादा बड़ा चढ़ा के उनको मतलब स्कॉल्डिंग और इंसल्ट किया जाता था। दिस एक्सप्लेनेशन आई हैव डन इट, थोड़ा एक्स्ट्रा कर दिए, हो सकता है क्यों मतलब वो भाग गया था, मतलब फटीग व्हाई डिड फटीग जस्ट रन आउट फ्रॉम हिज मैटरनल अंकल्स होम। ये क्वेश्चन अगर आएगा तो क्या आंसर हो सकता है। द डे फटीग गॉट फीवर he imagined the result when aunt would have to do extra work for him in illness। जो खाने वाने का सामान बनाया जाता है, मतलब कोई इलनेस हो जाता है तो इसके लिए तो अलग सा मतलब बनाया जाता है ना। दैट क्रिएटेड अ फियर इन हिम फॉर फादर इंसल्ट एंड स्कोल्डिंग। मैंने वो और भी मतलब उसको मतलब इंसल्टिंग पड़ेगा, इसीलिए मतलब वो डर के मारे ऐसे भागने का कोशिश किए। एंड ही फ्लीड फ्रॉम द अंकल्स होम to his village home। He was drenched totally in the rain that caused severe fever and possible pneumonia। तो ये इसी के कारण एक्चुअली उसका मौत हुआ था। The next RTC, December knew his thoughts। वहाँ से फटीग I have sent for your mother। यहाँ से एकदम लास्ट ना unfathomable sea, plumbing and unfathomable sea पूरा के पूरा हो रहा है। Let us come to the explanation। December sent messenger to Fatig's mother for his illness। Fatig was talking in delirium। delirium मतलब कि मतलब जब किसी को मतलब बहुत ज़्यादा फीवर हो जाता है तब
अनसन बकता है, मतलब वो कुछ मतलब अपना मन से मतलब कुछ भी बक देता है, उसको डिलीरियम बोलते हैं. पर्टिकुलर स्टेट ऑफ माइंड, एक्चुअली ही वॉज नॉट इन कॉन्शियसनेस. ही इमेजिन्ड दैट he went back to his own village, to his mother, as if he was sitting by the riverside and listening to the calling of sailors, measuring the water depth fathom by fathom. जो होता है fathom by fathom, मतलब कुछ नापने का एक तो कुछ होता है स्टिक टाइप का, मेजरिंग स्टिक बोलता है उसको. थ्रू अ मेजरिंग स्टिक ही वॉज इन सबकॉन्शियस स्टेज लाइक ड्रीमिंग. तो उसमें वो बाई द फैदम 1, बाई द फैदम 2 ऐसे मतलब बात कर रहे, जैसे वो सेलर लोग पहले वो देखता था वैसे ही वो उसको मतलब दोहरा रहा है. ठीक है, डिलीरियम में. दिस इज द लास्ट RTC हियर इन दिस स्पॉट. अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना. कोई भी तकलीफ होता है तो मतलब कुछ चाहिए होता है, कोई समरी या थीम या क्वेश्चन आंसर टाइप का, या RTC कोई पीस का, स्टोरी या पोएम का, जस्ट नो comment it in the comment box. Let us come to the explanation. Fatik's mother came receiving the news of illness, but it was too late. Fatik's condition was severe and critical. When he felt his mother's voice, he responded with a sound. That was not a sound. That was not a word actually. That was a sound, but a sign of actually relief, that ultimately his last resort, his mother, came to him and to take care. His desire to come back to his mother, his own village, जो जहाँ पर जाना चाहता था वो मन में, was fulfilled and realized that ultimately the holiday came. Holiday क्या है, मतलब छुट्टी का जो दिन है, स्कूल से मतलब छुट्टी मिल गया उसको. ये जो स्केड्यूल्ड लाइफ है कलकत्ता का, उसमें से उसको छुट्टी मिल गया. अल्टीमेटली ही केम बैक टू हिज ओल्ड विलेज, नेटिव विलेज, टू हिज मदर. इन माइंड ही वॉज थिंकिंग दैट ही हैज ऑलरेडी अचीव्ड इट. एक्चुअली ये क्वेश्चन आ सकता है कि मतलब टाइटल ऑफ द स्टोरी क्या मतलब वो जस्टिफाइड है, तो यही उसका आंसर होगा कि मतलब ही वेंट बैक टू हिज नेटिव विलेज एंड हिज मदर, टू हिज मदर, इन हिज माइंड. He achieved the homecoming through his mind. That was justified from that point of view. Okay. तो अल्टीमेटली वो किम्बक नहीं कर पाया था रियलिटी में, वो उसका डेथ हो गया था इसके बाद ही. लेकिन वो मन ही मन में सेटिस्फाइड होके मतलब सोचे थे कि मेरा मम्मी आ गया और मेरा नेटिव, तो मतलब मेरा नेटिव फील्ड जो है, गांव है, वो आ गया है. सो दिस इज एन एंड फॉर टुडे.